Hi everyone. So today we are going to discuss Henry Mintzberg's managerial rules. Highly important question, and many of the students have requested this topic. So I try to explain this topic as much as my capacity. And another point is that it's difficult to shoot videos on the important topics, but I'll try कि आपको important questions की videos जितनी मैं बना पाऊँ उतनी मैं पहुँचाऊँ. Let's begin with the Henry Mintzberg managerial rules. I try to simplify this topic as much as possible, and I really believe it will help you a lot. Let's begin. Mintzberg published his 10 management rules in his book Mintzberg on Management Inside Our Strange World of Organization. तो इस बुक में मिन्सबर्ग ने 10 रूल्स पब्लिश किए थे. 1990 की बात है ये. He is well known management researcher who have studied actual managers at work. तो उन्होंने क्या किया कि ये वाले जो रोल्स थे वो एक एक्चुअल स्टडी पे बेस्ड थे. तो सबसे पहले समझते हैं कि मैनेजरियल रोल होते क्या हैं. मैनेजरियल रोल इट रेफर्स टू द स्पेसिफिक एक्शंस और बिहेवियर्स expected of and performed by a manager. So these are basically expectations. How the manager should act, how the manager should perform. So these are the managerial rules. For example, like an individual, we play different roles in life and different things we are expected to do so. For example, let's say when we talk about that you act as a student, so expectations would be different, right? When you act as a son or daughter at home, your expectations would be different from the family members. When you act as a sister, your expectations will be changed. When you act as a businessman, your expectations will definitely be changed there. So with every managerial roles, expectations and behaviors will be changed. So this is just the reflection of your behavior, just the reflection of what actions you should be taken, right? So it shows the expectations and responsibilities एसोसिएटेड विद द पर्सन इन दैट रोल. तो हर रोल के साथ आपकी कुछ एक्सपेक्टेशंस होंगी और कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज आएंगी. तो ये रहे आपके मिन्सबर्ग मैनेजरियल रोल्स. देयर आर 3 रोल्स: इंटरपर्सनल, इंफॉर्मेशनल एज वेल एज डिसीजनल रोल्स. इंटरपर्सनल रोल्स इन्वॉल्व्स पीपल इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. आपका लोगों के साथ कैसा बिहेवियर है, अपने लोगों के साथ, बाहर वाले लोगों के साथ आप कैसे इंटरैक्ट करते हो. इंफॉर्मेशनल रोल्स कलेक्टिंग, रिसीविंग, डिसेमिनेटिंग इन्फॉर्मेशन. आपने कलेक्ट की, रिसीव की और आप उस इन्फॉर्मेशन को कैसे पहुंचाओगे दूसरों की तरफ, दैट इज इंफॉर्मेशनल रोल्स. Decisional roles, making decisions or making choice. As the name suggests, you have to take decisions. All right, so you have the responsibilities there. Something is expected from you that you should behave in a particular way. Let's come to the number 1, interpersonal rules. मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ. Interpersonal roles means involve people inside and outside the organization. So there are 3 types of roles you have to perform in interpersonal roles. Number 1, figurehead. Number 2, leader. And number 3, liaison. So we will be doing one by one. बहुत इजी वे में आपको कराऊंगी तो आपको छट से समझ आ जाएगा. Let's begin with figurehead. Figurehead. So this would be the person who is symbolic head of the organization. Let's say college का principal, symbolic head. Role model for the employees. Source of inspiration. So he is the person or she is the person to which each and every employee look up to. Alright, so whenever there would be difficulty, that is the person I should go for it. So that the person is a source of inspiration and a role model for me. That is called a figurehead. अब आप इसको अपनी फैमिली में भी जोड़ के देख सकते हो. आपकी फैमिली में फिगर हेड होते हैं आपके पेरेंट्स, फादर या मदर, वो आपकी फिगर हेड है. एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, दैट परफॉर्मिंग सिम्बॉलिक एंड सेरेमोनियल ड्यूटीज. फॉर एग्जाम्पल फैमिली में क्या होता है, फैमिली में जो पेरेंट्स होते हैं वो बच्चों के बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं, है ना, एक सिम्बॉलिक और सेरेमोनियल ड्यूटीज निभाते हैं. Same in case of organizations, principal or head of the department or CEO, these people are figurehead of the organization, most important people. So what they used to do, principal for example, welcome guest, welcome new recruitees, define the mission statement of the organization, and they inspire others with values and beliefs and stories by narrating these stories in front of the people so that they will be inspired much from the figurehead. सेकेंड पॉइंट इज लीडर. इंटरपर्सनल रोल का सेकेंड पार्ट लीडर है. तो लीडर क्या करते हैं, दे मैनेज द परफॉर्मेंस ऑफ एम्प्लॉयज, दे इंस्पायर अदर्स, दे मोटिवेट अदर्स, दे प्रोवाइड गाइडेंस एंड काउंसलिंग, दे प्रोवाइड सोल्यूशन वेन एवर एनी प्रॉब्लम कम्स इन द वे ऑफ सबॉर्डिनेट्स, राइट. तो वो क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स का सोल्यूशंस लेके आते हैं, अच्छे से गाइड करते हैं. वो सारी लीडर की क्वालिटी आपको यहाँ पे लिख देनी है. एग्जाम्पल क्या हो सकता है, कलेक्टिव टीम वर्क. एवरी लीडर ट्राइज
to coordinate activities of the team members, so the group synergy is needed there. इंस्पायर करते हैं टीम को इन केस ऑफ एनी केस ऑफ फेलियर एंड एक्सेप्ट द रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करते हैं. तो सक्सेस हो या फेलियर हो, रिस्पॉन्सिबिलिटी एज्यूम करते हैं, अपनी टीम को हमेशा इंस्पायर करते हैं. दैट इज द एक्सपेक्टेशन फ्रॉम अ मैनेजर हु इज एक्टिंग लाइक अ लीडर. थर्ड पार्ट इज लाइसन अंडर इंटरपर्सनल रूल्स. लाइसन क्या होता है? हु कम्युनिकेट्स एंड नेगोशिएट विद द इंडिविजुअल और ग्रुप्स आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन. जो कम्युनिकेट कर रहा है और नेगोशिएट कर रहा है किनसे? बाहर के लोगों से जो ऑर्गेनाइजेशन से बिलोंग नहीं करते. ऑलराइट. कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल ग्रुप्स टू गैदर इंफॉर्मेशन, बिल्ड पार्टनरशिप्स एंड रिजॉल्व इश्यूज. तो लाइसन ऑफिसर का क्या काम होता है? लाइसन कंप्लायंस के पार्ट पर ज़्यादा काम करता है. फॉर एग्जाम्पल, आपको लाइसेंस चाहिए. लेट्स से कि आपकी कंपनी किसी ऐसी फील्ड में काम करती है जहाँ पे पोल्यूशन होने के चांसेस है, या फिर आपको कोई लाइसेंस लेना पड़ेगा, तो वो गवर्नमेंट अथॉरिटी से बात करेंगे. इसका मतलब है कि इट इन्वॉल्व्स लॉ और रेगुलेशंस. तो जब आप लॉ और रेगुलेशंस के कंटेक्स्ट में बाहर किसी ऑर्गेनाइजेशन से बात करते हो, व्हेन यू ट्राइज टू कम्युनिकेट, व्हेन यू ट्राइज टू फाइंड आउट द सॉल्यूशंस, और यू नो गोइंग टू कम्युनिकेट विद द पीपल हु टू whom you have to rely over their decisions which affect the company's operations, तो वहाँ पे आपका लाइसेंस ऑफिसर काम आएगा. काफ़ी सारे एग्जाम्पल बन सकते हैं इसके. किसी भी चीज़ का आपको लाइसेंस लेना है, किसी भी चीज़ के लिए आपको गवर्नमेंट से परमिशंस लेनी है, तो वो सारे के सारे एग्जाम्पल्स आपके लाइसेंस ऑफिसर में आ जाएंगे. सेकेंड पार्ट, इंफॉर्मेशनल रूल्स. सेकेंड पार्ट इज इंफॉर्मेशनल रूल्स. इंफॉर्मेशनल रोल्स में क्या आएगा आपका? सबसे पहला, मॉनिटर. इट मीन्स एनी मैनेजर हु इज एक्टिंग एज अ मैनेजर, he or she has to gather the information, keep an eye on external environment, embrace change, closely watch inside and outside the organization. उसका काम है वॉच करना, क्या चल रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, क्या चल रहा है बाहर, कैसा एनवायरमेंट है, कैसे डील करना है. एग्जाम्पल क्या क्या हो सकते हैं? क्लोज वॉच ऑन चेंजेस एंड टेक्नोलॉजी. आप किसी ऐसी चीज़ में डील करते हो, आपकी कंपनी ऐसी चीज़ में काम करती है जिसमें टेक्नोलॉजी बहुत जल्दी चेंजेस हो रही है, तो वहाँ पे वो प्रॉपर वॉच करेगा. कंज्यूमर फीडबैक कैसे आ रहे हैं, मार्केट को मॉनिटर करेगा, क्या अप्स एंड डाउन्स हैं, क्या रेगुलर ट्रेंड है, अभी एकदम से अपडेटेड ट्रेंड क्या है. तो ये सारे काम मैनेजरियल रोल में मॉनिटर के साथ एसोसिएट किए जाते हैं. द सेकेंड पार्ट इज नाउ डिसेमिनेटर. सो डिसेमिनेटर शेयर्स इंफॉर्मेशन विद सबॉर्डिनेट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन. तो इसका काम इनसाइडर का है. ये सारी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं एम्प्लॉयज से जो उनको काम आने वाली है. कैसी इंफॉर्मेशन? फॉर एग्जाम्पल, शेयर इनसाइट्स विद द टीम मेंबर्स, एक्सचेंज ऑफ रिपोर्ट्स, इफेक्टिव कम्युनिकेशन ऑफ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन. तो जितनी भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन एम्प्लॉयज़ को चाहिए कोई भी डिसीजन लेने के लिए, वो ऐसी इन्फॉर्मेशन को अपने सबॉर्डिनेट्स के साथ शेयर करेगा. नेक्स्ट पॉइंट इज योर स्पोक्स पर्सन. Spokesperson is a person who represent and speak for the organization. Number 2, transmit information about your organization and goals to people outside the organization. सारी इंफॉर्मेशन पास करेगा बाहर की ऑर्गेनाइजेशंस को, जैसे कि मिशन, ऑब्जेक्टिव्स, वैल्यूज टू द सोसाइटी. तो स्पोक्सपर्सन ये काम है. अब आप यहाँ पे कंफ्यूज हो सकते हो कि लाइसन भी ऐसा ही है, दैट एक्ट एज ए कम्युनिकेशन लिंक बिटवीन ऑर्गेनाइजेशन एंड एक्सटर्नल ग्रुप्स, और स्पोक्सपर्सन भी आपको ऐसे ही लग रहा है कि वो भी बाहर के लोगों से बात ही कर रहे हैं. तो दोनों में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि लाइसेंस कंप्लायंस पार्ट पे ज़्यादा काम करता है, कोई रेगुलेशन पे काम ज़्यादा करेगा, जहाँ पे आपको लाइसेंस चाहिए, जहाँ पे आपको परमिशन चाहिए, और जहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफिशियल या किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करनी है कि उनकी परमिशन के बिना आपका काम नहीं चल सकता. ऑलराइट. स्पोक्स पर्सन में आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रिप्रेजेंट करते हो बाहर. कैसे? फॉर एग्जाम्पल, रिप्रेजेंट योर ऑर्गेनाइजेशन एट द कॉन्फ्रेंस. ठीक है. डिलीवरिंग प्रेजेंटेशंस, वर्किंग विद सोशल मीडिया. फॉर एग्जाम्पल, ट्विटर, लोग ट्विटर का यूज़ कितना ज़्यादा करते हैं, इंस्टा का यूज़ कितना ज़्यादा कर रहे हैं. ठीक है. तो आप अपनी इन्फॉर्मेशन को डिससेमिनेट करने के लिए सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हो, तो एक तरह से आपकी पब्लिसिटी भी हो रही है. तो दैट इज़ अ स्पोक्स पर्सन रोल इन मिन्सबर्ग मैनेजरियल रूल्स. आई होप आपको अब क्लैरिटी होगी कि लाइसेंस और स्पोक्स पर्सन में काफ़ी डिफरेंस होता है. ठीक है. लाइसेंस कंप्लायंस पे काम करता है और स्पोक्स पर्सन आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन और रिप्रेजेंट करता है ऑर्गेनाइजेशन को किसी भी तरह, मिशन, ऑब्जेक्टिव, वैल्यूज पे, और किसी भी ऐसे काम पर जिसकी कोई भी डिक्लेरेशन आपको पब्लिक को करनी है.
थर्ड वन लास्ट, डिसीजन रूल्स। डिसीजन रूल्स में नंबर 1 है आपका एंटरप्रेन्योर। वो एक एंटरप्रेन्योर की तरह काम करता है। जब हम डिसीजन की बात करते हैं तो सबसे पहला काम एंटरप्रेन्योर का क्या होता है? डिसीजन लेना। तो वो क्या करेगा? इनिशिएट द प्रोजेक्ट्स, इम्प्रूव द परफॉर्मेंस, इनिशिएट द आइडियाज एंड इनोवेशन। रिस्क लेगा। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, न्यू प्रोडक्ट प्लानिंग, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू सेल्स, हैंडलिंग स्ट्रैटेजीज टू इम्प्रूव परफॉर्मेंस। तो इन सारी चीज़ों पे काम करेगा जिससे प्रॉफिट्स अच्छे हो, डिमांड अच्छी हो, सप्लाई स्मूथ हो और कोई भी प्रॉब्लम ऑर्गेनाइजेशन में ना रहे। सेकेंड रोल इज डिस्टर्बेंस हैंडलर। नाम से ही पता चल रहा है, बिल्कुल एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि ये हर तरह के डिस्टर्बेंस को हैंडल करेगा। रिस्पॉन्स टू द प्रॉब्लम अराइज विद इन एंड आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। क्लियर? एबिलिटी टू फेस स्ट्रगल्स एंड फेलियर्स। अब उसको ये चीज़ें हैंडल करनी आनी चाहिए कि अगर कोई फेलियर है तो वो किस तरह से उनको हैंडल करेगा, क्या क्या काम उसे करने चाहिए। एक्चुअली दीज आर द एक्सपेक्टेशन। फॉर एग्जाम्पल, स्ट्राइक्स, लॉकआउट बाय एम्प्लॉयज़, कोई एक्सीडेंट हो गया ऑर्गेनाइजेशन में तो उससे कैसे डील करेगा। कस्टमर्स बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है, हंगामा हो रहा है बाहर, सोशल मीडिया पे काफ़ी कुछ लिखा जा रहा है, तो ऐसे डिस्टर्बेंस को वो कैसे हैंडल करेगा। रिएक्टिंग विद द नेगेटिव पब्लिसिटी, कॉन्फ्लिक्ट्स विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, आपस में ही लोगों की बन नहीं रही है, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन में। तो इस तरह के डिस्टर्बेंस को हैंडल करने के लिए ये रोल बनाया गया दैट अ मैनेजर एक्ट लाइक अ डिस्टर्बेंस हैंडलर। ऑलराइट, थर्ड इज रिसोर्स एलोकेटर। बिल्कुल नाम से क्लियर है ये भी, रिसोर्स एलोकेटर का क्या काम होगा? वो सारे रिसोर्सेज डिवाइड करेगा अमंग द डिपार्टमेंट्स। टेक नोट ऑन द लिमिटेड रिसोर्सेज, उसको पता होना चाहिए कि उसकी ऑर्गेनाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज एंड द लिमिटेड रिसोर्सेज क्या है। एंड ही वुड इंश्योर दैट इफेक्टिव एंड बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज शुड बी देयर। कौन कौन से रिसोर्सेज हैं? मैन, मशीनरी, मनी, मटीरियल एंड मेथड। एग्जाम्पल, असाइनिंग स्टाफ। काफ़ी सारे डिपार्टमेंट में स्टाफ की जरूरत है तो वो क्या करेगा? ये वाले रिसोर्स एलोकेट करेगा, ह्यूमन रिसोर्स एलोकेट करेगा। ही वुड प्रायोरिटाइज द टास्क, ही वुड एलोकेट द फंड्स, बजटिंग। सो दीज आर द टास्क ऑफ resource allocator. So manager is expected to be act as a resource allocator in decision roles given by Henry Mintzberg. Last point, negotiator. अब negotiator कौन होगा? ठीक है, involves in bargaining with the outside people. bargaining में involve होगा, डिसीजन लेगा डील्स के ऊपर, कोलैबोरेट करेगा टीम के साथ, डिपार्टमेंट या फिर आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। अब यहाँ पे दो चीजें हैं, बार्गेनिंग भी लिखा हुआ है, नेगोशिएटिंग भी आ रहा है, तो दोनों के बीच में डिफरेंस जानना बहुत जरूरी है कि नेगोशिएटिंग और बार्गेनिंग में क्या डिफरेंस होता है। जनरली बार्गेनिंग इज अबाउट द प्राइस, इट्स ऑलवेज अबाउट द प्राइस। आप मार्केट में जाते हो, बार्गेन करते हो, किस लिए? क्योंकि आपको वो जो चीज़ है ना, जो प्रोडक्ट है, यू वांट टू गेट दैट पर्टिकुलर प्रोडक्ट एट द लोवेस्ट प्राइस, एट द चीपेस्ट प्राइस, दैट इज कॉल्ड बार्गेनिंग। सो बार्गेनिंग इज ऑलवेज स्टार्ट विद द प्राइस, but in case of negotiating it aims at to reach at a result where both parties are in a win-win situation. इसका मतलब you tries to understand the needs of others. आप दूसरों की needs के बारे में भी सोचते हो, फिर negotiate करते हो कि दोनों को फायदा होना चाहिए, दोनों पार्टीज को फायदा हो। लेकिन बार्गेनिंग में क्या होता है? आपको विनिंग सिचुएशन रहती है कि बस जो मैंने कह दिया, मैं जीतना चाहिए हूँ, मुझे ये प्रोडक्ट लोवेस्ट प्राइसेस पे चाहिए तो चाहिए, सामने वाले को नुकसान होता हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये होती है बार्गेनिंग। सेम बार्गेनिंग विद द ट्रेड यूनियन, सप्लायर्स, नेगोशिएट विद द कस्टमर्स, एम्प्लॉयज एटसेट्रा। तो ये है आपका नेगोशिएटर। आई होप ये आपको समझ आ गया होगा बार्गेनिंग और नेगोशिएटिंग में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। तो दीज वर द रोल्स विच वर एक्सपेक्टेड to performed by the managers into these 3 categories, and there are total 10 roles. I hope this video seems to be useful for you. All right, thank you so much and all the very best for your exams. Thank you.